Hello students, you are welcome to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about disk scheduling algorithm, right? So we will discuss how many scheduling algorithms are there and we will discuss each and every algorithm in detail. So it is a very important lecture. So here we go to start our topic. Let us discuss first what is disk scheduling. If we talk about disk scheduling, तो disk scheduling हम कब करते हैं जब हमारे पास डिस्क के लिए आईओ रिक्वेस्ट आती है, राइट? यानी कि डिस्क को एक्सेस करने के लिए जब भी कभी आईओ सिस्टम या इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आपके पास आती है, देन उस केस में हमें डिस्क शेड्यूलिंग की नीड होती है, राइट? सो डिस्क शेड्यूलिंग को हम आईओ शेड्यूलिंग भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज आईओ शेड्यूलिंग. सो डिस्क शेड्यूलिंग इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल आईओ रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर द डिस्क. Disk scheduling is important because क्यों important है? Because multiple IO requests may arrive by different processes and only one IO request can be served at a time by the disk controller, right? So क्योंकि बहुत सारी multiple IO request आपके पास आ सकती हैं एक ही टाइम पर, but IO controller disk controller जो है वो एक टाइम पे एक ही IO request को सर्व करेगा. Thus other IO requests need to wait in the waiting queue and need to be scheduled, right? फर्स्ट रीजन कुड बी दैट वन, राइट? क्योंकि बहुत सारी आईओ रिक्वेस्ट आ सकती हैं बट एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, सो बाकी जो रिक्वेस्ट है उनको वेटिंग क्यू में डाला जाएगा, राइट? बिकॉज ऑफ दैट वी नीड डिस्क शेड्यूलिंग. अनदर रीजन कुड बी टू और मोर रिक्वेस्ट मे बी फार फ्रॉम ईच अदर, सो कैन रिजल्ट इन ग्रेटर डिस्क आर्म मूवमेंट. दो रिक्वेस्ट बहुत दूर दूर हो सकती हैं, सो आर्म का मूवमेंट ज्यादा होगा दोनों तक पहुंचने में, राइट? सो मूवमेंट इज ग्रेटर. Hard drives are one of the slowest part of the computer system and thus need to be accessed in an efficient manner, right? So hard drive को हमें efficient manner में access करना चाहिए, right? So there are some disk scheduling times that we need to consider during disk scheduling algorithm. The first time that is called as seek time. Seek time क्या है? Seek time is the time taken to locate disk arm to a specified track where the data is to be read or write. जहाँ पर डेटा आपको रीड या राइट करना है उस ट्रैक तक आर्म को लेकर जाने में जितना भी टाइम लग रहा है, आर्म को लोकेट करने में उस ट्रैक तक जहाँ से आपको रीड या राइट का परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम, राइट? सो क्या चीज बेटर होती है? इफ योर सीक टाइम इज मिनिमम देन इट इज better, right? So disk scheduling algorithm does that give minimum average seek time is better. वो algorithm better होगा जिसका seek time कम से कम होगा, right? कि हमें कम से कम डिस्क को मूव कराना पड़े. नेक्स्ट वन इज rotational latency. Rotational latency is the time taken by desired sector of the disk to rotate into a position. जो आपका सेक्टर है, डिजायर्ड सेक्टर को रोटेट करने में पर्टिकुलर पोजीशन में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाएगा रोटेशनल लेटेंसी. और ये मूव क्यों करता है? सो दैट it can access the read write head, right? So disk scheduling algorithm that gives minimum rotational latency is better. सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी आपके मिनिमम होने चाहिए, वो एल्गोरिथम आपका बेस्ट होगा जो कि सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी को मिनिमम करेगा, राइट? नेक्स्ट इज ट्रांसफर टाइम. Transfer time is the time to transfer the data. It depends on the rotating speed of the disk and number of bytes to be transferred. And last one is disk access time. If we talk about disk access time, it is the sum of all these three times: seek time plus rotational latency plus transfer time. So the formula is disk access time is seek time plus rotational latency plus transfer time, right? So now let us discuss the algorithm, disk scheduling algorithm. For understanding disk scheduling algorithm, we will see this diagram, right? This is disk delay and queuing. This is seek time, this is rotational latency, and this is transfer time, right? तो डिस्क एक्सेस टाइम की जब हम बात करते हैं तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या है? डिस्क एक्सेस टाइम तीनों का समीशन है. सो डिस्क एक्सेस टाइम आपका यहाँ से यहाँ तक होगा. सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम इज द सीक टाइम. एंड इफ वी टॉक अबाउट डिस्क रिस्पॉन्स टाइम, तो डिस्क रिस्पॉन्स टाइम में आपका डिस्क डिले भी ऐड हो जाएगा, राइट? ये तीनों टाइम यानी कि सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम एंड प्लस डिस्क डिले. डिस्क में जितना डिले लग रहा है, क्यूइंग में जितना भी टाइम लग रहा है, दैट टाइम विल बी एडेड, देन इट disk access time will become disk response time, right? So now there are so many types of scheduling algorithm that we are going to discuss. The first one is FCFS scheduling algorithm. That is first one, first come first serve algorithm. So what is FCFS? FCFS scheduling, it is the simplest scheduling of all the disk scheduling algorithm. In FCFS, requests are addressed in the order they arrive
इन द डिस्क क्यू। डिस्क क्यू में जिस ऑर्डर में आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उस ऑर्डर में आप उसको प्रोसेस करेंगे, राइट। सो लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल। सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज, ऑर्डर आपको दिया है 80, 170, 40, 140, 24, 16 एंड 190, राइट। एंड द करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड इज 50, यानी कि करंटली आपका रीड राइट हेड कहाँ पर है, 50 पर। सो वी विल शो द डिस्क शेड्यूलिंग सच एज, आप 0 से 199 तक आप ये सेक्टर बनाएंगे, राइट। एंड देन आपका जो हेड स्टार्ट होगा, रीड राइट हेड इज starting from 50 because we are given that current position of read write head is 50. तो आप 50 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन आपको मिला 82, राइट। फर्स्ट डेटा इज 82, तो ये आपका 82 पर पहुंच जाएगा रीड राइट हेड। देन आपका 170, सो यू विल गो टू 170, राइट। 170 के बाद आपको 43 मिल रहा है, सो 43 पर आप पहुंच गए। इस तरह से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 43 है आपको कहीं, राइट। 43 के बाद आपको जाना है कहाँ, 140, 24, राइट। 140 पर गए आप, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आप 43 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 140 पर। आफ्टर 140 यू हैव टू एक्सेस 24, तो आप यहाँ पर 24 पर गए। 24 के बाद 16, ये आपको 24 है, देन ये आपका 16 है, और 16 के बाद आप पहुंच गए 190 पर, राइट। सो 190 पर आप यहाँ पर, दिस इज 190, आप यहाँ तक पहुंच गए, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सीक टाइम, राइट। तो सीक टाइम आपका कैसे कैलकुलेट होगा उसे समझ लेते हैं। So for calculating seek time, what we will do, we will see कि हम कितने मूवमेंट करा रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले जो आपका हेड है वो कहाँ से कहाँ, 82 में से 50, तो 82 माइनस 50 प्लस 170 माइनस 82, क्योंकि 82 से हम 170 पर पहुंच गए, प्लस 170 से हम कहाँ पहुंचे, 43, तो 170 से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी, 170 करनी पड़ी, 170 माइनस 43, 43 से हम पहुंचे 140 पर, सो 140 माइनस 43, फिर 140 से हम पहुंचे 24 पर, सो 140 माइनस 24, 24 माइनस 16 एंड 190 माइनस 16, तो ये आपका टोटल सीक टाइम हो जाएगा, राइट। सो वी विल find out the difference and we will add them, so it will be called total seek time. तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने टोटल सीक टाइम कैलकुलेट किया। टोटल सीक टाइम इज 82 माइनस 15, जितने भी आपके मूवमेंट हुए उतने आपने डिफरेंसेस कर दिए, सो दिस इज विल बी कैलकुलेटेड एज 642। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चेक कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है एफसीएफएस की, एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस, हर रिक्वेस्ट को यहाँ पर टाइम मिलता है। नो इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट, कोई भी पर्टिकुलर पोस्टपोनमेंट नहीं होता किसी भी रिक्वेस्ट का, राइट। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज द सीक टाइम, यहाँ पर हम सीक टाइम जितना भी आता है उतना ही होता है, हम सीक टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, राइट। दिस इज द डिसएडवांटेज, क्योंकि हमें मिनिमम सीक टाइम चाहिए होता है, बट हियर वी आर नॉट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द सीक टाइम। may not provide the best possible service, right. FCFS could not provide the best possible service, so these are some disadvantages. So next algorithm that we will discuss is SSTF. It means shortest seek time first, right. The full form of SSTF is shortest seek time first. So let us discuss SSTF in detail. So in SSTF, request having shortest seek time are executed first. जिन request का shortest seek time होता है हम उन्हें पहले execute करते हैं. So the seek time of every request is calculated in advance in the queue and then they are scheduled according to their calculated seek time, right. तो हम यहाँ पर किस तरह से process करेंगे, let us consider this example. Let us consider that the order of request is given, right. इस order में आपकी request आई है. So now here हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले आपको दिया है रीड राइट हेड 50, तो हम 50 से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 50 के नियरेस्ट कहाँ कौन सी वैल्यू हमें मिल रही है, तो आप 50 से सबका डिफरेंस देख लीजिए। 50 माइनस 82 कीजिए, 50 माइनस 170 कीजिए, 50 माइनस 43 कीजिए, राइट। 50 माइनस ऑल ऑफ द डेटा कीजिए आप, तो आप देखेंगे कि 50 से जो सबसे कम सीक टाइम मिलेगा वो 43 पर जाने पर मिलेगा। सो हम 50 से सबसे पहले जो मूव करेंगे 43 पर मूव करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, राइट। 50 से 43 के लिए। अब आपका रीड राइट हेड 43 पर है, अब आप 43 से सबके डिफरेंसेस कैलकुलेट कीजिए। सो 43 से जब आप सबके डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि 43 के जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है दैट इज 24, क्योंकि सबसे मिनिमम टाइम 24 में ही आपको मिलेगा, राइट। सबसे मिनिमम सीक टाइम 43 से चलने पर 43 और 24 बिकॉज पास है।
फिर 24 के से आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, 24 से मिनिमम डिफरेंस आपको 16 पर जाने पर मिलेगा, सो दैट्स व्हाई यू हैव कम टू 16, राइट। एंड देन 16 से डिफरेंस आपको कहाँ कम मिलेगा, 16 से अब आपको और कोई वैल्यू कम नहीं मिल रही है, सो यू विल रीच एट 82, राइट। तो आप 82 पर पहुंच जाएंगे, सो 82 पर पहुंचे, 82 से अब आपका क्या डिफरेंस कम मिलेगा, तो आपको शॉर्टेस्ट सीक टाइम निकालना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना है, राइट। सो हियर टोटल सीक टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल सीक टाइम कितना मिलेगा आपको, जितना भी आपका सीक टाइम का डिफरेंसेस आए हैं वो सब आप ऐड कर दीजिए, राइट। क्योंकि हम 50 माइनस 43, 43 माइनस 24, 24 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 82, और वी कैन से 82 माइनस 16 प्लस 140 माइनस 82 प्लस 170 माइनस 140 प्लस 190 माइनस 170। तो ये सारा डेटा आपने किया तो यहाँ पर आपको मिल गया शॉर्टेस्ट सीक टाइम मिला इन कंपैरिजन टू एफसीएफएस। एफसीएफएस के लिए ज्यादा वैल्यू थी, यहाँ पर आपकी वैल्यू फिर भी आपकी ऑप्टिमाइज हो गई है। सो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीजेस, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है एवरेज डिक्रीज हो रहा है और थ्रूपुट आपका बढ़ रहा है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसएसटीएफ एंड डिसएडवांटेजेस आर ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम इन एडवांस, सीक टाइम को एडवांस में कैलकुलेट करने पर थोड़ी ओवरहेड हो सकती है, कैन कॉज स्टारवेशन फॉर अ रिक्वेस्ट, राइट, स्टारवेशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। हाई वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एज एसएसटीएफ फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट, राइट। सो हाई वेरिएंस हो सकता है आपके रिस्पॉन्स टाइम में। Now let us discuss the third one, that is scan scheduling algorithm. In scan scheduling algorithm, what we do, स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस डायरेक्शन के बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें हम प्रोसेस करते चलते हैं, राइट। सो लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल, यहाँ पर आपको दिया है इन स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द डिस्क आर्म मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड सर्विस द रिक्वेस्ट कमिंग इन इट्स पाथ, एंड आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ डिस्क it reverses its direction and again serves the request arriving in its path, right. So this algorithm works as an elevator, hence we also call it as elevator algorithm. Scan algorithm को elevator algorithm भी बोलते हैं, right. So example से समझते हैं, let us suppose हमारा current read write अभी क्या था, 50 पर था, right. तो 50 से जब आप इस request को process करना शुरू करेंगे तो आप क्या है, let's say कि आप पहले राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 50 से जितना भी बड़ा डेटा है वो पहले आप एक्सेस करते हुए चलेंगे। तो 50 से आप 82, 82 से आप गए किस पर 142, 142 से आप गए 170 पर, 170 से आप गए 190 पर, राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पहले एक डायरेक्शन में लास्ट तक जाएंगे, 190 के बाद आप रिवर्स नहीं लेंगे, पहले आप 199 तक जाएंगे, राइट, स्कैन शेड्यूलिंग में। तो आप लास्ट तक आपका ये हेड मूव करता है, लास्ट के बाद फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, राइट। अब डायरेक्शन चेंज कर जब आपने की, सबसे पहला डेटा आपको 43 मिला, क्योंकि 43 गिवन है, 43 के बाद 24 एंड 24 के बाद 16। सो देयरफॉर यहाँ पर सीक टाइम हम अगर कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, आप 50 से कहाँ गए हो 199 तक, राइट। सो क्योंकि लास्ट तक जाना कंपलसरी है तो 199 माइनस 50, दिस इज द डिफरेंस, प्लस 199 से आप गए हो लास्ट कहाँ 16, so 199 minus 50 plus 199 minus 16, this is the seek time and it is 332, right. So let us discuss some advantages and disadvantages of scan disk scheduling algorithm. तो advantages क्या है यहाँ पर scan scheduling की, that high throughput, low variance of response time, average response time, right. And if we talk about disadvantages, long waiting time for request for locations just visited by discom, right. अगर किसी डिस्कॉम ने किसी पर्टिकुलर लोकेशन को जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही विजिट किया है, देन उसको अगर दोबारा उसकी रिक्वेस्ट आती है तो लॉन्ग वेटिंग टाइम लगेगा उस रिक्वेस्ट के लिए, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशंस जस्ट विजिटेड बाय द डिस्कॉम. So because of this disadvantage, we used C-scan scheduling, right? C-scan scheduling में हम क्या करते हैं, C-scan scheduling में आप जैसे कि हम पहले क्या था, वहां पर स्कैन शेड्यूलिंग में 50 से 199 लास्ट तक गए थे, जितनी भी बीच में रिक्वेस्ट आई थी सब प्रोसेस की थी, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में चल के रिक्वेस्ट प्रोसेस करने लग गए थे। बट सी स्कैन शेड्यूलिंग में हम एक ही डायरेक्शन में पहले कंप्लीट करते हैं, राइट। तो हमने अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो डिस्क आर्म शुड मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू, राइट।
तो यहाँ पर टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू मूव करेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 199 से डायरेक्ट 0 पर पहुंच जाएंगे। पहले सबसे पहले 0 पर पहुंचेंगे, उसके बाद हम आगे फिर अगेन फर्दर स्टार्ट कर देंगे मूव करना और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 50 से 182 पर गए, 82 से आप गए 142, 142 से आप गए 170, राइट, 170 से आप गए 190, 190 के बाद आप पहुंच जाएंगे लास्ट में 199। अब 199 से जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो आप कुछ भी प्रोसेस नहीं करेंगे, राइट। सो हियर व्हेन यू गो टू द रिवर्स डायरेक्शन यू विल प्रोसेस नो रिक्वेस्ट, राइट, यहाँ तक पहुंच गए। अब 0 से अब आप फिर लार्जर वैल्यू की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, राइट, इस तरह से। तो ये सी स्कैन शेड्यूलिंग का अगर हम सीक टाइम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सीक टाइम विल बी here we can see the seek time is 199 से डिफरेंस निकाला 50 का, प्लस 199 से आप कहाँ गए 0 पर, 199 माइनस 0 एंड देन 43 माइनस 0, जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी आई है 43, सो 43 माइनस दिस इज 0, तो 43 माइनस 0, तो ये आपका आया 391 इज द सीक टाइम फॉर सी स्कैन। अगर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो एडवांटेज क्या है यहाँ पर, provides more uniform wait time compared to scan, scan के comparison में more uniform waiting time रहता है C scan में। Then next algorithm is look, right, it is similar to scan disk scheduling algorithm, scan की तरह ही है except for the difference that disk arm is in spite of going to the end of the disk goes only to the last requested to be serviced in front of the head and then reverses its direction from there only, right। सो लिक में हम क्या करते हैं, लुक में जैसे कि हम स्कैन शेड्यूलिंग की तरह ही है, बट स्कैन में हम क्या कर रहे थे 199 प्रोसेस करने के बाद हम 199 तक भी जा रहे थे। ये 190 जब आपने एक्सेस किया तो हम 199 तक भी जा रहे थे, बट हेयर व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे लास्ट वाले 199 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ जो लास्ट रिक्वेस्ट है दैट इज 190 यहाँ तक जाएंगे एंड देन वी विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन में जो भी आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई है आप वहीं तक जाएंगे, 0 तक नहीं जाएंगे, राइट। सो दिस इज लुक एल्गोरिथम, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राइट। तो आपको 190 तक ही जाना है, 190 से आप लास्ट तक नहीं जाएंगे एंड देन रिवर्स नहीं लेंगे, आप 190 से ही रिवर्स लेने लग जाएंगे एंड यहाँ पर लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। So that seek time is calculated as 190 minus 50, कि 190 से 50 का डिफरेंस प्लस 190 माइनस दिस वन 16, से आपको मिला 314। So this is look algorithm and the last one is C look algorithm, right? So C look algorithm भी आपका जैसे कि आपका जो हमारा हमने पढ़ा लुक एल्गोरिथम वो स्कैन एल्गोरिथम की तरह है, इन द सिमिलर वे सी लुक इज सिमिलर टू सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राइट। इन सी लुक this the arm in spite of going to the end goes only to the last request to be surfaced in front of the head and then from there goes to others and last request, right। जैसे कि हम वहां पर क्या कर रहे थे 199 से 0 पर पहुंच रहे थे, बट हियर यू विल नॉट गो टू 0, यू विल गो टू ओनली द लास्ट रिक्वेस्ट, राइट। सो आप यहाँ पर 190 तक आए, 190 से आप जब प्रोसेस करना शुरू करेंगे तो जो फर्स्ट रिक्वेस्ट मिलेगी वो 16 मिलेगी, 16 से फिर आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप 0 तक नहीं जाएंगे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी लुक एंड सी स्कैन। सो हियर सीक टाइम विल बी calculated as seek time will be 190 minus 50 plus 190 minus 16 and plus 43 minus 16, तो ये आपका सीक टाइम आ जाएगा दैट इज 341। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े। फर्स्ट वन इज FCFS, देन नेक्स्ट इज SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, एंड देन हमने स्कैन और सी स्कैन पढ़ा, लुक और सी लुक पढ़ा। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। I hope ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.